बहुत हुआ देख लो भाई। I think it's a great opportunity, and Mukesh has started it's an awesome initiative because I think everyone's getting a chance to present themselves, and what more can an actor or a director or anyone the performing arts want than an opportunity to present and showcase their skills. And well, here is an awesome opportunity. Mukesh had actually cast me in Hasi To Fasi, and he really puts his backing and talent that he believes in. So it's my first time. I couldn't come last year. I was not here. I was in Hyderabad, I think. So I'm waiting to see now. It looks very exciting. I got a very awesome, cool welcome. So. And you like the vibe? I do. I'm loving it right now, and I think it's sort of positive. For Commando 2 as such, I mean. Well, we opened at a huge number. I'm really excited. I saw it with the audience in like a little bit, like a 15-minute thing, and the response was fabulous with the action and CTs and all. I'm planning to go today to a theatre again. Vidyu's not in town, so I'm taking my friends and going. But I couldn't have asked for more. I think the audience liking your movie and reacting to each thing that you want them to react to in a film is the best thing you can ask for. So very excited. जो प्लेस हो रहे हैं और सब बढ़िया चल रहा है यार। बहुत बड़े फेस्टिवल हुआ है ये तो मुकेश का तो माइलस्टोन है। इसने इतना बढ़िया शुरुआत की है फेस्टिवल की। ये बिल्कुल भारतनाट्यम की याद दिलाता है। दिल्ली में एक फेस्टिवल होता है हर साल नेशनल स्पोर्ट ड्रामा का, उसकी याद दिलाता है। तो कमाल किया है इसने। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और आसानी से हो नहीं सकता था। और ख़ास बात यह है कि इसमें नो प्रॉफिट वाला मामला है। मतलब मुकेश छाबड़ा एंड सन्स को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है इससे, छोड़ उससे कि रात को नींद अच्छी आएगी। मतलब बढ़िया तरीके से कर दिया, पैशनेटली काम कर दिया तो रात को नींद अच्छी आएगी। बड़ा सोल पर्पज इसका ये है कि कुछ भी स्वार्थ नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रेट एडिशन। फिर आपको मौका मिले तो आप इनिशिएटिव उठाएंगे आगे चल के? अरे मैं तो आलसी आदमी है, मैं क्या लूँगा ऐसा इनिशिएटिव। मैं तो अपने आराम से मस्ती की ज़िंदगी है मेरी। मुकेश बड़ा कर्मठ आदमी है, बड़ा एक्टिव आदमी। उसकी बेसिक क्वालिटी एक्टिव होना, लगातार और प्रयत्न करना। What do you think of Khidkiya as an initiative for theatre? It's a great initiative. I have been coming here since a couple of years, since the time it started actually, and I'm so happy to really know that it is continuing its initiative, and each and every small initiative for theatre will go a long way, in really promoting theatre in this country. How do you like the vibe here? Oh yeah, I see so many young people crowding around, and it's a great sight. When you see crowd outside a theatre auditorium
so many people volunteering. So it's a great atmosphere. मनोज सर, आपका भी थिएटर बैकग्राउंड है, तो आपको कितना मदद किया थिएटर एक सफल अभिनेता बनने में? जी, आपको कितना मदद हुआ एक सफल अभिनेता बनने में थिएटर बैकग्राउंड? मेरे ख्याल से थिएटर जो है किसी को भी एक्टर, डायरेक्टर या इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले थिएटर करना चाहिए रिगुलसली फॉर 4-5 years. थिएटर जो है सबसे डिफ़िकल्ट मीडियम है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. जो थिएटर कर चुका है वो इस बात को जानता है कि थिएटर इज़ नॉट एन ईजी गेम, बट इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर द बिगर प्लेटफॉर्म. थैंक यू. Hello sir. Hi. What do you think of Khidki as an initiative? This is the first time I've come here, so I won't say I'm extremely excited, but yes, I'm extremely honored that my friend Mukesh asked me to come over here, and I'm an extreme supporter of live theatre and plays because that's what I've been indulging in since school and childhood and college. So yeah, I'm pretty happy to be here, and I'm pretty happy he called me here. So I usually don't get much out of the house much, so I'm happy to be here. It gives me an opportunity to have a bath. Can Sorry? you tell us how important theatre is in becoming an actor? How It's I think it's the most important aspect about being an actor. No actor on television or in films can, I think, qualify to be an actor unless and until he has not done stage, theatre or a street play or got the feel of a live audience. And I would champion that cause because all my life I've hosted shows in front of a live audience. So that gives you an automatic interaction with the live audience, knowing where you're going right and where you're going wrong, how good you are or how bad you are. So do you think, you will also plan an initiative to give a platform to aspiring actor or actress? I would love to work with aspiring actors. The only thing is, the kind of movies which I make, those movies, they don't really permit me or some other contemporary filmmakers to experiment a lot in lead roles. But yes, it is true. I am making a film. I won't call it the film, but I am making a film with a lot more newer star cast than I would have expected in my entire career to do so. Sir, one ID center. भाई थिएटर का सबसे बिगेस्ट ये ओकेजन है, 5 दिन पूरे हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जब शुरू हुआ था पिछले साल तो बहुत ही छोटा था, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। एंड आई थिंक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत खुश हूँ मैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। आज भी मैं एक बड़े अपने अजीज़ मित्र का एक नाटक देखने आया हूँ जो उन्होंने डायरेक्ट किया और बहुत खुशी है। ये बहुत बड़ा बनते जाए हर साल और मैं भी इससे जुड़ना चाहूँगा किसी ना किसी भले बड़े छोटे रूप में, लेकिन जुड़ना चाहूँगा। थैंक यू सर।
initiative, and theatre like this is a dying art form, but it's festivals like these, I think we can keep it alive, and there is an audience for it. I enjoy theatre, so I would like to tell everybody यार मतलब बहुत अच्छा होता है theatre, देखना चाहिए. And Mukesh, my friend, has started this initiative, and I'm here to support him. What do you think about the vibe? Theatre for Bollywood industry. I would love to do theatre if there is. Talents are from Bollywood industry. This Which is is- a festival as well as a tribute to Om Puri. जी. What do you have to say about it? No, it's a great thing. Of course, ओम पुरी जी एक लेजेंडरी एक्टर हैं, और उनकी अब चाहे वो हमारे साथ नहीं है, बट उनकी फिल्में हमारे साथ हमेशा थैंक यू. What do you think of Khidkiya as an initiative to promote theatre? यार आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. आई थिंक अगर थिएटर को इतना बढ़िया प्रमोशन मिले, इतने बढ़िया स्केल पे मिले, पिछले साल से इस साल और बड़ा हो गया है और बड़े बड़े नाम जुड़ते जा रहे हैं. सो आई थिंक व्हाट बेटर देन दैट. And how do you like the vibe and the welcome? यार जस्ट एंटेड, वेलकम वाज ग्रेट. हाँ, मुझे फूल पड़े में एक मिनट घबरा गया था, बट ऑब्वियसली ग्रेट यार. वेरी नाइस वेलकम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी इनसाइड. ऑलराइट, थैंक्स. Of Khidkiya as an initiative. I'm totally excited as a student of cinema and the art of theatre acting. As an initiative, I think there are difficult to describe it in words as such. It's a great initiative. I'm sure it will grow. I always told Mukesh that what a wonderful job, and maybe this was his calling, and it's gonna propel a lot of people who want to enter the world, give them a lot of encouragement. How important are you think theatre is in shaping an actor's performance? Oh, that's an understatement to say how important is theatre in shaping up an actor. It's you can't separate the both. Theatre is like this mother which gives birth to actors. Thank you. Hi. 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 So what do you think of Khidkiya as an initiative? I think Khidkiya is a great initiative. I think I mentioned this, that cricket and cinema are the two big entities of a nation. But I think this is the first time in the history of a country that theatre has the potential to be mainstream through Khidkiya, through colours, and I think it's a great initiative of Mukesh. Aishwan, from remake for Colors, theatre, Hello. Hello. कैसे हैं? Yeah. So एक trained theatre actor Yeah. और एक untrained film actor में क्या फर्क होता है? ट्रेन थिएटर एक्टर और अनट्रेन फिल्म एक्टर में ये फ़र्क होता है. ट्रेन थिएटर एक्टर बिना स्क्रिप्ट के कुछ भी कर सकते हैं. टाइट मीडियम है, आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. अगर ऑडियंस को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं. अनट्रेंड फिल्म एक्टर जो है वो शायद टेक पे टेक देता जाएगा, वो एक्चुअली ऑन स्क्रीन भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएगा. आई थिंक अगर थिएटर आपने किया है, एक साल भी थिएटर किया, आपको कम से कम वो 10 साल सिनेमा में दे सकता है. आई थिंक इट्स दैट मच इम्पोर्टेंट. फिल्म में आने से पहले आपने काफी थिएटर किया मैंने- था, आपके हाँ। brother भी आपका Yeah. उसी के थ्रू आए हैं, तो थिएटर की कुछ अच्छी सी यादें बताएंगे? हाँ, 5 साल थिएटर किया है मैंने चंडीगढ़ में, और 2 थिएटर ग्रुप की स्थापना की है, मंचतंत्र एंड आगाज़ इन कॉलेज. एंड मेरे भाई ने काफ़ी थिएटर किया दिल्ली में, रेडियो भी मैंने किया है. और थिएटर की सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैं 19 साल का था, तब से हमने भारत भ्रमण करना शुरू कर दिया था. वी यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस द नेशन विद अ ग्रुप. ट्रेन में ट्रैवल करते थे हम, ट्रेन के अंदर भी थिएटर करते थे. जो स्ट्रीट थिएटर फॉर्मेट है, हम ट्रेन के डब्बों के अंदर भी किया हुआ है हमने. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई हैव कंपोज्ड वी आर संग इन द ट्रेन, गिटार पर, ढोलक पर, और हमने पैसे भी इकट्ठे किए हुए हैं उसके ज़रिए, और इतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे कि हमारा गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर हो जाता था. सो वी हैव डन, हैड लॉट ऑफ फन थ्रू थिएटर एंड म्यूजिक.
So I think मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा सिखाता है. हमें याद है थिएटर के टाइम पे आपको सिखाया जाता था रुको मत जाओ और रुको मत जाओ. ऐसे कोई सेंटेंस बताइए जिससे ये एस्टैब्लिश हो सके कि अगर एक्टर बनना हो तो स्पीच कितना फाइन करता है. आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है ये स्पीच को हम बहुत सीरियसली लेते हैं. कई एक्टर्स की जुबान साफ भी नहीं होती तब भी वो कनेक्ट की बात होती है. आई थिंक इट रियली डजंट मैटर आप तेज़ बोल रहे हैं स्लो बोल रहे हैं आप कितना एनंसिएट कर रहे हैं. आई थिंक इट हैज़ टू बी द कनेक्ट विद द ऑडियंस दैट्स इट. उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है. या थैंक यू सो मच. What do you think of Khidkiya as an initiative? It's very exciting. It feels like I could easily go back to college. It gives me the feeling that, there's so much energy when you bring theatre out of just the proscenium setting and the formal idea of watching it in one kind of way. So it allows for more new blood, it allows for excitement, it allows for conversation. So it's a great initiative. I think there's conversations, there's a whole bunch of other activities and events. It's much needed, I think, in the city. I think we need to make culture a lot more young, a lot more accessible, more fun. So I'm looking forward to watching Hindi theatre. I don't get a chance very often, and I'm really grateful that he's managed to get great theatre and conversations to the city. How do you like the vibe here? How do you like it? Sorry? How important is theatre talent for our Bollywood industry? Absolutely, it's integral for us. I mean, theatre is a very one of the many arts that informs cinema. It's about performance. It's about setting. It's about writing. We learn so much from good theatre in cinema. So it's one of the key things, pillars on which cinema stands. So it's very important for us. किरण थिएटर को एज पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर प्रमोट करना क्यों जरूरी है? हम लोग एक्चुअली जब मैं बड़ी हो रही थी तो सिनेमा इतना था नहीं. हम लोग सिर्फ प्लेस देखते थे और एक अलग रिश्ता बनता है परफॉर्मेंस के साथ. आपको नॉट जस्ट परफॉर्मेंस, भाषा के साथ बहुत ज़रूरी है कि और ऑल्सो अलग अलग तरह के जो आप सिनेमा में कर नहीं पाते. आप थिएटर में आप टर्न करके कह सकते हैं दिस इज़ अमेरिका, और ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज़ अमेरिका, या जो भी है. आप एज एन ऑडियंस उसमें आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होती है, जो कि सिनेमा में हम लोग फीड करते हैं. हमको सब आपको दिखाते हैं ज़्यादातर. तो थिएटर इज़ वन ऑफ द 7 आर्ट्स, वन ऑफ द ओरिजिनल आर्ट फॉर्म्स. और ये अगर ज़्यादा लोग देखें, और पहले लोग एक्चुअली थिएटर बहुत इतना फॉर्मल नहीं होता था. गाँव में, शहरों में, सब जगह बहुत ग्रुप्स घूमते थे, तो बहुत एक मौका मिलता था लोगों अपने प्रॉब्लम्स के भी एक सोशल चेंज का मीडियम होता था. अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने का एक मौका मिलता था. तो एक बहुत ही एनर्जाइजिंग सॉर्ट ऑफ कल्चरल फॉर्म है ये, बहुत पावरफुल फॉर्म है ये, और ज़रूरी है कि हम इसको और बढ़ावा दें. मुकेश छाबड़ा ने फिल्म दंगल की जो मोटी कास्ट थी, जिसकी वजह से दंगल इतनी हिट हुई. सारी कास्ट, नॉट मोटी. मुकेश ने A to Z सारी कास्ट की. तो दंगल के सक्सेस में इनका बहुत बड़ा हाथ है. दंगल के बनने में इनका बहुत बड़ा हाथ है. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू इट. Thank you. Thank you. Well, this is the second year that it's now, and I want to wish Mukesh all the very best for it. He's a fabulous casting director. He's like a powerhouse that attracts so much talent. So
initiatives like Kid should be encouraged. I want to wish for the very best. I hope it can be shown. Do you like the vibe and welcome? I've just entered, so it's good. Most important thing is the stepping stone and athlete आप स्कूल परिवार मैदान कमांड में हो या स्कूल के मैदान Of Khidkiya as an initiative. I think it's a great initiative, and honestly, Mukesh called me, so I just came here to participate in it. How important is Bollywood industry currently? Well, honestly, I don't know much, but I'm just coming here to see, to participate in it. That's it. And when you are coming back on the screen, because people are willing to see you back. Hope soon. Soon. Have you been a part of theatre anytime? Yes, actually, I started my work from theatre. When I was in school, it was theatre, which I did a couple of plays, and I got encouraged in that, and that's how I got my initial craze for acting. Thank you. Thanks. Thank you. I think it's great. I think it's just wonderful, and atmosphere here is electric, and I missed the whole thing. I came with it, so yeah. But I loved it. Did you enjoy the welcome and the vibe? I loved it. I loved it. It was so good. Lovely. Thank you. सर तुम्ही कधी थिएटरचा पार्ट होतात का? थिएटरचा पार्ट आहे म्हणून मी जगात आहे. And what will you want to say to the aspiring actors? I would like to tell them that work hard, do as much acting as they could. You can. Theatre, cinema, anything, everything is good. Everything leads each other. Have fun. Thank you, sir. Thanks.
fabulous platform, and heard so much about it, and every time I miss it, but this time I sure that I have to come and attend it. And I think for all the people who are creatively connected to our industry, I think it's a huge platform, and I think it's kind of a festival which everyone should attend. And did you like the welcome and you like the vibe over here? Very, very positive. You know, I heard, like I said, you know, all my friends have attended it, and we all rave about it. And today it's my first time, and I'll always look forward coming back here again and again. Any message you want to give to Khidkiya and the team? You know, I just want to tell everyone that I think it's a huge initiative, and you've done very, very well. Just keep on doing the good work, and keep on, making all the people come and see the dreams, and wish you all the best, and I hope to be the part of Khidkiya family every year. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks. What do you think of Khidkiya as an initiative? Everyone who's attached to the performing arts, so it brings everyone together. So ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और लोग आने चाहिए. इस साल का हम पिछले साल भी थे यहाँ पर और इस साल का turnover is even better. So it should get even bigger and bigger. So Did you like the vibe and the environment? lovely vibe, amazing people, amazing crowd, very like-minded people. So it's really fun. Any feedback or message for us? Keep growing, guys, and keep doing well. It was really fun, and I hope we keep coming back here because it's always fun to perform for an audience who has a love for the craft. So yeah, thank you so much for having us. Thank you. Khidkiya as an initiative? You want me to say good things only, right? Yeah. No, I mean, it is a good initiative. I mean, congratulations to all those who came together to do this. I wish मैं जब try कर रही थी actor बनने का उस time ये होता तो, but okay, better late than never. So I'm here, first time I'm attending it, so I'm looking forward to the experience. And do you have any theatre experience prior? I've never even taken part in dramatics in school. I've never passed a single audition in my life. Given a chance, Sorry? in future, If they think I'm good enough, then please. If they take audition, I'll fail again. I have Shabana on 31st March. I have Jurwa on 29th September. There are two more. I'll announce them when the dates come in hand. What do you think of Khidkiya as an initiative? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव और मुकेश छावड़ा जी ने एक खिड़की खोली है जिससे बहुत सारे आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने एक खिड़की खोली है बहुत सारे थिएटर एक्टर्स के लिए, बहुत सारे जेन्युइन आर्टिस्ट के लिए जो कई सालों से मेहनत कर रहे थे, उनको मौका मिला है काम करने का. और खिड़कियाँ फेस्टिवल में आके ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी की फीलिंग आती है, अपने सह कलाकारों से मिलते हैं, बड़ा मज़ेदार माहौल. And any message for the Khidkiya feedback for the Khidkiya team? फीडबैक तो कुछ नहीं है, मैसेज यही है कि बहुत मज़ेदार फेस्टिवल है. आई होप इट ग्रोज लीप्स एंड बाउंड्स फ्रॉम वेयर इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम लास्ट ईयर एंड आई लव द वाइब हियर. इट्स सो नाइस, चिल. Welcome in the vibe. You like the welcome? आई लव द वेलकम. मैं डर गया एकदम, मुझे लगा ये क्या मैं गलत जगह आ गया. इट वॉज अ लवली वेलकम. इट्स वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम. Thanks a lot. Thank you.
बारे में थोड़ा बताओ। मैं एक्चुअली बिल्कुल भी जुड़ी नहीं हूँ, मैं एज एन ऑडियंस आई हूँ बिकॉज एक्चुअली मैंने पोस्ट देखा था फेसबुक पे कि ऐसा कोई फेस्टिवल चल रहा है एंड आई डिडंट रियली नो एनीथिंग अबाउट इट एंड आई गॉट टू नो दैट मुकेश सर इज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग इट. तो मैंने इनफैक्ट अभी यहाँ पे आके पूछा कि एग्जैक्टली इवेंट्स क्या है, क्या हो रहा है, एंड देन शी टोल्ड मी कि इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉर्मल ऑडियंस टू एक्सपीरियंस थिएटर. तो आई थिंक मैं व्हेन आई वाज एक्टिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू थिएटर, पर मुझ में उतने गट्स थे ही नहीं कि मैं लोगों के सामने परफॉर्म कर पाऊँ, और अभी भी नहीं है. मतलब मुझे अगर आप बोलो कि लाइव ऑडियंस के सामने कुछ बोलना है, मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं. तो आई थिंक फॉर पीपल लाइक मी who want to do something and who wants to be a part of such an environment, तो ऐसे इवेंट्स पे ना क्या होता है कि आप लोगों को देखते परफॉर्म करते हुए, आप उनको सुनते, तो आप में थोड़ी हिम्मत आती है कि आप भी शायद एक स्टेप लो उसके टुवर्ड्स इट. सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव है. आई एम नॉट फ्रॉम थिएटर, so I don't know actually. हाँ, आई थिंक इट्स आर्ट्स और क्रिएटिव्स ऐसी चीज़ है कि आप हाय कि इफ़ यू आर फ्रॉम थिएटर इट ऑलवेज हेल्प्स यू एज एन एक्टर टू डेवलप योर स्किल्स, बट इवन बीइंग बिहाइंड द कैमरा is has its own, I don't know, I can't say anything because I've never done theatre, so I really don't know. I'm not the right person to say anything about it. मैं तो मतलब मैं बहुत ही गंदी एक्टर हुई थिएटर में, बट ऑफकोर्स यार आई वुड वांट टू, बिकॉज मुझे स्टेज फ्राइटनेस है, तो आई थिंक आई वुड वांट टू ओवरकम दैट समडे. और जो फेस्ट के बारे में आप क्या सोचती हैं, और मतलब क्या कोई मेमोरीज रही हैं ऐसे कोई फेस्ट के साथ में जुड़ी हुई आपके कॉलेज टाइम में? मेरे कॉलेज में, हाँ, मैं मिठी बाई कॉलेज में थी, मेरा क्षितिज पता, हाँ, तो मैं उसमें क्रिएटिव्स में थी, आर्ट्स एंड क्रिएटिव्स. आई वाज द HOD. तो फॉर मी फेस्टिवल्स आर वेरी स्पेशल बिकॉज मैंने कॉलेज कभी अटेंड नहीं किया. मैं 12th के बाद ड्रॉप आउट हो गई थी, तो मैं कॉलेज सिर्फ फेस्टिवल के लिए जाती थी. एंड आई मेट अमेजिंग पीपल देयर. आई थिंक ऑल माई फ्रेंड्स I've met them through the festival. नहीं यार, फिलहाल तो नहीं है. आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट्स, आई एम मीटिंग पीपल, बट नथिंग एज ऑफ नाउ. आई थिंक सिर्फ एक दिन नहीं चाहिए हमें वुमेन को सेलिब्रेट करने के लिए. बी इट एनी अदर डे, आई थिंक वी शुड ऑलवेज celebrate women, and not only women, I think it's just about equality. I think सबको, मतलब मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं. सॉरी, पता प्रॉब्लम क्या है कि मैं इतना आई नहीं ऑनलाइन. आई हैव हर्ड द नेम बट आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. ऐसे सवाल नहीं पूछते यार. सुनो खिड़कियाँ है ना, खिड़कियाँ पूछते ना. चलो हो गया. ओके, जस्ट अ स्नैप विद द खिड़कियाँ. ऑनेस्टली मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी कि मैं कभी कैमरा के इस तरफ होंगी, इस तरह के इवेंट पर. कॉलेज में हम हमेशा उस तरफ पे रहे हैं, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पर आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुकेश ने हमें ये मौका दिया. ऑल्सो बिकॉज यू फील लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज हमें मौका इतना मिला नहीं था. पहली बात तो मैं बैंगलोर से थी, तो उधर एक्सपोजर पहले कम था. अब तो थिएटर बहुत बड़ा है उधर, बट इट्स पीपल लाइक मुकेश जो टैलेंट को एक मौका देना चाहते हैं. एक तरह की एक सीढ़ी बन जाती है आपके लिए, जिससे आप आगे बढ़ सके अपने करियर में. एंड इट्स नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ टैबू टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और बी पार्ट ऑफ थिएटर. पहले कहते थे अरे कुछ नहीं आता है, थिएटर में एक्टिंग करते हैं, आगे क्या करना चाहते हो. एंड नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट थिएटर एंड मूवीज, पीपल रियली लुक अप टू यू. सो आई फील लाइक मुकेश जैसे लोग हैं जो हमें इतना प्राउड फील कराते हैं कि हम इस फील्ड का हिस्सा हैं. जी, कॉलेज में एक्चुअली मैं एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्ट करती थी प्लेस को. तो चाहे वो स्कूल में था, मुझे याद है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे सीनियर्स का एक फेयरवेल था, एंड हमने देवदास पे एक स्पूफ किया था. तो वो एक बहुत बड़ी बात थी एट दैट पॉइंट. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डायरेक्टेड समथिंग एंड इट वाज हिलेरियस.
सो आई रियली एन्जॉयड डूइंग दैट। मुझे हमेशा लगता था कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूंगी या उस तरह से कुछ किसी तरह से जुड़ूंगी इंडस्ट्री से, नॉट एज एन एक्टर। बट पापा ने मुझे कह दिया बेटा फोटोग्राफी का कोर्स बहुत महंगा है, खुद पैसे कमाओ खुद कर लो, ये बोला गया था मुझे। Obviously belong to a simple middle class family, but when I started shooting my second film in Canada, मुझे याद है मैं मलेशिया गई थी और मैंने एक चीज़ खरीदी थी अपने लिए, वो था एक DSLR एंड नाउ माई ब्रदर has taken it forward and he is using it। वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो थिएटर का बहुत बड़ा हिस्सा है बैंगलोर में, तो आई फील वेरी प्राउड जस्ट बीइंग हियर। कितना डिफरेंस देखती हैं आप थिएटर और सिनेमा में? बहुत फ़र्क है। आई थिंक थिएटर इज़ फार मोर चैलेंजिंग। आपका आप कुछ भी कहो, एटलीस्ट मूवीज़ में हमें एक मौका मिलता है रीटेक करने का। मूवीज़ में ड्रॉबैक ये होता है कि आपको एक मोमेंट, आप थिएटर में एक स्टोरी को एक टाइम पे लिव कर रहे हैं एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर इमोशंस। सिनेमा में ये होता है कि कट होने के बाद यू हैव टू पिक इट अप फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत चैलेंजिंग है। थिएटर में आपको एक मेमोरी पावर की ज़रूरत है, आपको एक स्टेज प्रेजेंस की ज़रूरत है। You have to connect with the audiences without the help of any other person. So I feel like that is more challenging in theatre. और सिनेमा में चैलेंजिंग ये होता है कि आपको अपना एक मोमेंटम बना के रखना होता है, प्लस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इमोशंस देयर। ओके, और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं कर चुकी हूँ अपनी नेक्स्ट मूवी साइन, लेकिन मैं बहुत सुपरस्टिशियस हो गई हूँ, सो आई हैव जस्ट लेफ्ट इट टू द प्रोड्यूसर्स। बहुत सिंपल, एक्चुअली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग आई प्लेड। चाहे वो मेरी साउथ की मूवीज़ थी, यहाँ पर तो एक ही फिल्म हुई है अभी और दूसरी रिलीज़ भी नहीं हुई है, तो कहना मुश्किल है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का वैरायटी आ रहा है। आई हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड विद अ स्क्रिप्ट लाइक दिस, सो व्हेन आई फर्स्ट रेड इट मुझे पता था कि मैं इसको जस्टिस कर पाऊँगी, तो मैं बहुत खुश हूँ प्रोजेक्ट से जुड़कर। मुझे होली की सबसे प्यारी बात भांग लगती है। जस्ट किडिंग, बट रंगों से बहुत प्यार है मुझे। एज यू कैन सी आई एम लाइक ऑल रेड टुडे। मुझे रंगों से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड आई थिंक दैट समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। मुझे गीली होली नहीं पसंद, मुझे रंग बहुत पसंद है। और डेंजरस प्लेटफॉर्म, आई थिंक anything connected with technology is dangerous nowadays. It's not just social media. Anything connected with technology, but unfortunately अब हमारी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी पे आके रुक चुकी है। इससे आगे कब जाएंगे पता नहीं। It's a very important day for me for two reasons. एक तो मेरे बड़े पापा का बर्थडे होता है, दूसरा आई थिंक Women's Day हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ रिमाइंडर फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दैट women have a power, but I think as women, for us every day is Women's Day and I think it's very important to believe in ourselves. तो हमें एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, ये दिन उन लोगों के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि हम भी हैं, लेकिन हमें याद है कि हम हैं। थैंक यू सो मच। मैम क्या कहना चाहिए इससे, क्या आप इधर पे आएंगे, सो थिएटर फेस्टिवल है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, आप किस तरीके से? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म में आजकल जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो लार्जली इसलिए आया है कि अपार्ट फ्रॉम द लीडिंग एक्टर्स, जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनको ज़्यादातर थिएटर से लिया जा रहा है। इससे एक फ़र्क आ गया है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग जो हैं सिर्फ स्टॉक कैरेक्टर्स को लेते थे, सिर्फ मेन एक्टर्स पर कंसंट्रेट करते थे, और अगर कमेडियन है तो ये करेंगे, और अगर वो अब जो है वो बिल्कुल माहौल बदल गया है, क्योंकि जो कास्टिंग डायरेक्टर के आने की वजह से ये पूरा माहौल बदल गया है। थिएटर फेस्टिवल होना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है और मैं खिड़कियाँ को बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि इस तरह से आप इनकरेज करते हैं उन एक्टर्स को जिनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग मिली है एक्टिंग में। और हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि जितने भी थिएटर फेस्टिवल्स हो सकें उतने हों। आज की शाम ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये ओमपुरी जी के नाम पर है, और ओमपुरी जैसे भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के बेहतरीन अदाकारों में से थे, और थिएटर से उनका ताल्लुक़ रहा था। वो NST के स्टूडेंट थे। जब मैंने पहली बार ओमपुरी को देखा था तो एक नाटक में ही देखा था, और मैं उनसे बहुत मुतासिर हुई थी। मैं मुबारकबाद देती हूँ मुकेश को और खिड़कियों को कि उन्होंने ये फेस्टिवल रखा है ओमपुरी जी के नाम पर।
जिस तरीके से आज के टाइम में सिनेमा जो डिजिटल होता जा रहा है, लोगों का आज के टाइम में वेब सीरीज आती जा रही है, टीवी सीरीज आ रही हैं और जो फिल्में आ रही हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लोग थिएटर से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो वेरियस मीडियम्स हैं। जाहिर है कि थिएटर को साथ जीना इन तमाम मीडियम्स के साथ, इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको आर्ट्स के लिए जिस तरह की स्पॉन्सरशिप्स मिल सकें वो मिलें, क्योंकि थिएटर का अपना मायना है, अपनी जगह है और इस जगह को अगर हम महफूज कर कर नहीं रखें तो ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। थैंक यू। 1 साल पहले भी, पिछली बार भी मैं आया था, पूरा अटेंड किया था, हमारा भी नाटक था। इस बार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था शेड्यूल की वजह से, लेकिन मुकेश छाबड़ा का ये प्रयास मेरे ख्याल से बॉम्बे के अंदर इतने सारे थिएटर और फिल्म के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है और मेरी शुभकामनाएं हैं। नहीं, मेरे ख्याल से मुकेश छाबड़ा ने जो सबसे बड़ा काम किया है, बड़े से बड़े बैनर से लेकर के और छोटे से छोटे बैनर वालों को और थिएटर वालों को और एक्चुअल जो रियल टैलेंट है उनके अंदर दूरी बहुत कम कर दी है। तो वो जो दूरी जो कम हुई है और आज टैलेंट बेस पे ही कास्टिंग हो रही है और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वरना इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में थिएटर के लोगों को कोई सोच भी नहीं सकता था पहले। आज ये सब पॉसिबल हो पाए इन प्रयासों की वजह से। बस है होली पे मैं तो दिल्ली होऊंगा, दिल्ली के पास में होऊंगा, तो अपने दोस्तों के साथ कुछ राइटिंग में बैठ रहा हूँ एक हफ्ता 10 दिन, तो शायद वहीं जो भी होगा होली मेरे ख्याल से मनाऊंगा नहीं इस बार। भाई कीचड़ में बिना नहाए तो होली होती नहीं है, बिना भांग पी और बिना कीचड़ में गिरे तो होली हमने तो खेली नहीं कभी, तो इसलिए आजकल खेलनी पड़ रही है मजबूरी में थोड़ी सी। बस थैंक यू सो मच। पहली बार आया हूँ, बट फैंटास्टिक आइडिया है, मुकेश ने किया तो अच्छा ही किया होगा। थिएटर को वापस इतना ग्रैंडर देना आसान काम नहीं है, एंड इज पुट टुगेदर, सो ऑल द बेस्ट। सर, कितना परिवर्तन देखते हैं आप आज के टाइम में थिएटर को इस डिजिटल वर्ल्ड में? यार अभी इवॉल्व हो रहा है थिएटर, जो डिजिटल स्पेस में मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान हो जाएगा अब लोगों तक पहुंचना। हाँ, बहुत सारे ऐसे रास्ते निकलेंगे कि थिएटर पहुंच सकेगा लोगों तक थ्रू द वेरियस अदर मीडियम विच आर ऑन पीपल्स फोन्स नाउ। ओके सर, और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? आप नहीं, अभी कुछ नहीं। थिएटर फेस्टिवल मेरा सबसे फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स टू डू इन कॉलेज. I still remember going to the NSD festivals and where is this Utopia in Delhi? National Habitat Center, and obviously all the college festivals. So this is my first time I've come in Khirkiya, and I think last year was the first year that it happened. So I'm very excited. I don't really know what I think I'm going to be listening to a recital. I'm very excited about it. Obviously there's a difference between stage and so stage is always happen on an actual time, and the process that I think both they're very different. The experience of like I've not done a film, but if I talk about television and say theatre, the process and the journey to put up a show or put up a serial is very very different. कभी-कभी क्या हो जाता है कि जब हम टीवी पे शूट करते रहते हैं constantly, वो थोड़ा सा it tends to get a little mechanical, but stage is very you have to be present there, and I think बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा you have to give it your all and it is much more spontaneous. So I'm looking forward to someday do a musical. I don't answer to hypothetical questions. Thank you. फेस्ट से अगर कोई जुड़ी है तो कोई मेमोरीज हो जो आप शेयर करना चाहें कभी कॉलेज के डेज में कुछ इस तरीके से? Actually बहुत सारे हैं. I remember taking our backpacks, wearing our Kolhapuri chappals and those Fab India skirts and spaghettis and those dark cold. That is the kind of the vibe that we used to leave home in the morning. And I think by evening we wouldn't even looking like half nice as we used to. But in the whole day, the kind of things, whether it was watching different kind of plays, right from serious play to plays to poem recitals to sometimes shairis to sometimes, I remember in the Habitat Center once they showed Mahabharat with Katputli. So I don't forget all the things. So every year would be new. So 4 years regularly I have experienced it in different colleges. It's my most favorite. And then you used to get tired and we obviously wouldn't have chairs and also we'd just lie down in the grass eating like pani puri. So yeah, I have lots of good memories. I don't really play Holi, but yes, पूजा करके फिर मंदिर में थोड़ा सा होली चढ़ा के and then probably parents and friends. जिस तरीके से डिजिटल सिनेमा थिएटर में हो गया है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं थिएटर जो है वो पीछे छूट गया है, आगे चले गए हैं, लोग बिछड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं थिएटर के साथ? बिछड़ते, I mean it is definitely becoming slowly for say a particular kind of people like it, and it's becoming very niche. But I don't think something as enriching and something as important as theatre, which is a part of storytelling, can go anywhere. And places like Khidkiyan and all the other all over the world, if you see, I don't think stage is going away anywhere, because I think the Broadways abroad are as popular as the movies. And yes, in our country, even in our country, I think small villages, and so there are I have grown up seeing Jatra and street theatre. So I think it's there. I definitely think that probably if it got more funding and it got more push, it would be way more. But theatre is a medium of stage where you need to be present in person to kind of feel the stage. It is not like even if you see a play in your home on screen, like when we see this Shakespeare and BBC plays at home, it's not as same as being in the theatre present and experience it firsthand. So I think that's pretty much about it. Ji. That's all right. Not everybody can. I said that's all right. Not everybody can like you. You per se are dislike you. Then I know. No. My answer is not everybody can like every single show on TV. So there will be people who would really appreciate you, and there would be some who. That's absolutely all right. I'm just of artists to come in and show off their talent. So I think more of these platforms need to be given to the public for people to come and just colleges for any young talent basically. All creative minds come together at places like this, so it's a great initiative. And what do you think about the importance of theatre as framing in an actor? Well, I think it's important that we have more theatre and people watching more theatre than just movies on big screens. Theatre is an art which is just fantastic. I don't want it to die. I would like to be part of theatre, so more festivals like this would enhance the art. Cool. कैसे मनाएंगे यार? किसी की पार्टी में जाएंगे, रंग फेंकेंगे, यही करेंगे. अरे यार खिड़कियाँ हाँ वही तो खिड़कियाँ बोलो यार. प्रोग्राम चालू. बढ़िया त्यौहार है. ओके सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे कि आप खिड़कियों पे आज ये थिएटर फेस्टिवल पे हैं, सो क्या देखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? मैं एक्चुअली आज आया हूँ एक पैनल डिस्कशन के लिए. डिस्कशन बिटवीन स्टेज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म.
तो उसके लिए आया हूँ। एंड मुकेश जी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड बहुत अच्छी बात है कि वो थिएटर के लिए एक ऐसा फेस्टिवल हो रहा है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के, थिएटर के, डिजिटल प्लेटफॉर्म के सारे आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स सारे एकजुट होकर पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं एंड ऑडियंसेस के लिए भी उस पैनल डिस्कशन का हिस्सा होना, उन वर्कशॉप्स का हिस्सा होना, उन वो प्लेस देख पाना, ये सब एक बहुत अच्छी गैदरिंग है एंड आई थिंक इट्स ऑल हेल्पिंग दी आर्ट। ओके, आपकी नज़र में फेस्ट की क्या मतलब डेफिनेशन है, आप क्या सोचते हैं, आपकी कोई मेमोरीज इस तरीके से कुछ रही हो कभी फेस्ट की? मैं एक्चुअली पिछले साल भी यहीं आया था एंड इस साल भी आया। कभी कॉलेज डेज में या कुछ में? कॉलेज में हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे एंड हमेशा हम भी मतलब उसमें लगे पड़े होते थे कि उस फेस्ट का हिस्सा बनना, कल्चरल हेड हो जाना, फिर वो सारा कोऑर्डिनेशन कराना, एक बहुत अच्छा त्यौहार की तरह फीलिंग होती है और बहुत लोग इकट्ठे भी होते हैं तो एक अच्छी एनर्जी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, और क्या आपका कोई बजट्स आ रहे हैं, कुछ जानना चाहिए इसके बारे में? अभी एक फिल्म खत्म हुई है विच इज़ कॉल्ड लव फॉर स्क्वायर फुट, डायरेक्टेड बाय आनंद तिवारी एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय रोनिस ब्रूअर, और अभी राजकुमार गांधी जी के साथ 10 बायोपिक शुरू हुई है। जैसे कि आपने कहा कि डिजिटल इम्पोर्टेंट है, तो कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में डिजिटल? आज के ज़माने में मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो सबके एज एन ऑडियंस अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी अपलोड करते हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो एक स्केच हो, कुछ भी हो, वो जैसे ही अपलोड किया आपकी जेब में आ जाता है। अब चाहे वो ट्रैफिक में फंसे होंगे, वो 10 मिनट में आप देख लो, या कहीं भी बैठे हो आप कभी भी देख सकते हो। आपके लिए आपको उसके लिए एक प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके हाथों में वो शो सीधे आ जाता है। तो आई थिंक वो बहुत इट्स द मोस्ट अप्रोचेबल मीडियम है। सोशल मीडिया में ट्रोल्स भी होते हैं, तो वो कैसे है अगर आप देखते हैं? कुछ नहीं, मेरे ख्याल से कई लोगों का घर चल रहा होगा तो अच्छी बात है। और होली आने जा रहा है, तो किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं बताना चाहिए? होली इस बार फैमिली के साथ ही हूँ एंड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैमिली के साथ ही होती है, अनलेस काम होता है तो शूट चल रही होती है, बट अगर शूट नहीं चल रही होती तो फैमिली और दोस्तों के साथ ही। तो कुछ मेमोरी बताना चाहिए होली की, आपके कॉलेज की, या इस तरह के सेलिब्रेट करते हैं आप? होली यार काफ़ी नॉर्मल सी होली होती है, मतलब रंगों के साथ होती है और मतलब फैमिली फ्रेंड्स के साथ होती है। मेरे लिए होली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तब होता है जब आप रंग हो चुके हैं, पानी हो चुका है, ठंडा हो चुका है, पर जब गरम गरम भजी और पकौड़े मिलते हैं ना तो उसमें खुश होता है। होली के दिन ज़्यादा कलर्स यूज़ किया जाता है, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो क्या मैसेज देना चाहिए दर्शकों के लिए आप कि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहें और कुछ नहीं। कई बार जोश में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बट रिस्पॉन्सिबल रहें, एक दूसरे की केयर करते हुए खेलें और उसको एंजॉय करने के लिए ताकि I think it's a great initiative by Mukesh Chawla's casting company because it's like I said, gatherings like these are very rare, where there are people from theatre background, there are people from the theatre background and films and digital platform all coming together and discussing their own perception about this art form, be it acting or direction or writing. So I think it's a great platform for the audiences also to come here and participate in all that. For us also to understand different mindsets because हम भी यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठा हैं, हमें उनकी बात समझ में आती है और अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आई थिंक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बड़ा हो चुका है एंड आई थिंक मोर पावर टू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने 3-4 साल करीब थिएटर करने का मुझे मौका मिला एंड आई फील किसी भी एक्टर के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आपको थिएटर में स्टेज पे आप परफॉर्म करते हो लाइव ऑडियंस के सामने, आपसे गलतियाँ होती हैं, आपसे कुछ नया होता है, कुछ अच्छा होता है, तो आप वहीं आप इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हैं। तो थिएटर इज़ एक्चुअली एन एक्टर्स मीडियम, सिनेमा इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो थिएटर में आई थिंक वो बहुत अच्छा रियाज है हर एक्टर, अपनी खामियों के लिए, अपने प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स सब कुछ देखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसने थिएटर की ऑडियंस कम हो गई है और लोग नहीं, बिल्कुल आई थिंक बहुत हैंड इन हैंड चल रहा है। इनफैक्ट ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि थिएटर एक्टर्स को, थिएटर डायरेक्टर्स, राइटर्स को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है अपनी राइटिंग का, अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का। तो आई थिंक इट्स गोइंग हैंड इन हैंड। इनफैक्ट वो कहीं भी आपस में नहीं बोल रहे, आई थिंक वो बहुत ही हैंड इन हैंड चल रहे हैं एंड ऑडियंसेस के लिए उनको एक और ऑप्शन मिल रहा है, यू नो, अपने आप को एंटरटेन करने। Well, I think that this is a great, very wonderful initiative, and all congratulations to Mukesh for
putting this together and for all the other organizers as well. I think कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कला के किसी भी क्षेत्र में नए टैलेंट को अवसर मिलना, और खिड़कियाँ ये जो फेस्टिवल है ये वही प्लेटफॉर्म है। और मुकेश छाबड़ा और उसकी पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चमक है, बहुत चकाचौंध है, अक्सर काबिलियत और टैलेंट थोड़ा साइडलाइन हो जाते हैं, तो ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म हो उतना बेहतर है। एंड मुकेश इज़ ऑफ कोर्स वेरी फैंटास्टिक casting director, and now we know why, because he has access to all this amazing new fresh talent. कितना इफेक्ट मतलब मुझे पर्सनली हुआ या कितना इफेक्ट बिजनेस? आई मीन ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगता यार, अगर आपका कोई काम जो आपने पूरी शिद्दत से पूरी सिंसियरिटी से और एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में किया है, वो अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिना किसी संदर्भ के इंटरनेट पे पाया जाए एक छिछले रूप में, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। एज एन आर्टिस्ट आप कॉम्प्रोमाइज्ड फील करते हैं, आप थोड़े से वायलेटेड फील करते हैं, बट आई थिंक दैट आई होप इट डजंट अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फिल्म। अच्छी फिल्म है, ज़रूरी फिल्म है, हमने किसी छिछले मकसद से नहीं किया है, वो बनाया नहीं है, एंड होपफुली लोग देखेंगे और जब देखेंगे समझ जाएंगे। I don't really know, it's their business. I mean, yeah, let's talk about this, right? I mean, How important do you think theatre is? The producers are doing what they have to do. They're following it up legally, and I'm sure that they'll get to the bottom of it. How important do you think theatre is in framing a person, like an actor or in life in general? I think theatre, any contact with the arts is a wonderful thing. It will, it's very, it is something that is expansive. It leads to the growth of any individual person. It betters you as a person, I feel. I think that good art will always make people more empathetic. Good original art. Yeah. मुझे लगता है, देखिए लाइव जो परफॉर्मेंस है, और चाहे वो नाटक हो, नुक्कड़ नाटक हो, गाना हो, डांस हो, वो हमेशा से चला आ रहा है। वो वन मानुष के टाइम से आ रहा होगा या केव मैन के टाइम से आ रहा होगा, जब वो एक साथ बैठ के कहानियाँ सुनाते थे एक दूसरे को। आई डोंट थिंक कि आप कभी वो जो एक लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन होता है उसको कभी रिप्लेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आते रहेगी, बढ़ते रहेगी, बदलते रहेगी, लेकिन आप इंसान से जो कम्युनिकेशन है, वो जो एनर्जी है एक लाइव परफॉर्मेंस की, उसे आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसलिए हम देखते हैं कि इवन आई मीन ऑल दीज रॉक स्टार्स एंड ऑल दीज सिंगर्स, म्यूजिशियंस, देयर कॉन्सर्ट्स ओनली गेटिंग बिगर। वो नाउ दे आर यूजिंग डिजिटल मीडियम टू रीच आउट टू मोर पीपल, लेकिन वो लाइव परफॉर्मेंस रिप्लेस नहीं हो रहा है। सो आई डोंट एक्चुअली थिंक कि थिएटर को कोई खास खतरा है वेब मीडियम से। You better watch the film, buddy. आप इस फिल्म के बारे में इतने सवाल पूछ रहे हो, आप और 10 लोगों को लेके जाओगे आप ये फिल्म देखने के लिए। I think that my film is a brave film, and it is Anarkali Vara is a very brave film, and I think that it's not just about message. It's a good story. It's a story that should be told, that should be heard, and it's basically a story about standing up for what is right. And women and men should definitely watch the film, not सीटी बजाने के लिए और ताली बजाने के लिए। सर होली पे आ रही है, होली पे क्या कहना चाहेंगे, क्या विश देना चाहेंगे, क्या विश देना चाहेंगे? मैं बोलूँगी कि भाई हैप्पी होली, और बुरा ना मानो होली है, बहुत अच्छी कहावत है, इसे गलत अंदाज में मत लीजिएगा। हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ होली, एंड एवरीवन शुड हैव फन ऑन होली। ये एक्चुअली मेरे बारे में बहुत बड़ी मिथ है कि मैं एक कोई बहुत ही मंझी हुई थिएटर की आर्टिस्ट हूँ। मैंने थिएटर कॉलेज में किया है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी आजकल खासा बदनाम। उसमें एक ग्रुप था, स्टूडेंट्स चैप्टर था इप्टा का, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जन नाट्य मंच का, तो भारतीय जन नाट्य मंच का, तो मैं उसका हिस्सा थी। हम लोग ज़्यादातर
नुक्कड़ नाटक और क्रांतिकारी नाटक करते थे। और इसके बाद मैंने बहुत ही विख्यात दिल्ली के थिएटर के टीचर हैं, डायरेक्टर हैं पंडित NK शर्मा, उनका ग्रुप है एक्ट 1। मैंने एक्ट 1 के साथ वर्कशॉप्स किए, लेकिन मैं प्रोसीनियम थिएटर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। बट आई नो कि बॉम्बे में कोई भी जो ढंग की हिंदी बोलता है उसके बारे में लगता है कि वो ये थिएटर एक्टर होंगे, बट सो या आई एम जस्ट गेटिंग क्रेडिट फॉर समथिंग आई हैवंट डन। भाई आप मुझसे अलग से